Good evening. It's Anup sir. I am just going to describe chemistry. It's a recap that what I have taught to you. What have I seen in chemistry? Lots of students they think it is toughest subject. Then I have seen when I was studying in St. Javier College, Ranchi. I was also a student of Hindi medium school. When I have gone there, then I have got lots of difficulties that I was not understanding it is very well. But slowly I have started to learn, and learning is a process. Learning is a process. So just I have started in chemistry. On that time, I have struggled a lot because in that time I was not understanding very well about reactions, about things, about practical knowledge. On the same time, after my inter science, I have taken admission in BSc. In BSc, my honors was zoology honors, but chemistry it was my favorite subject. As you can say nowadays, each and every subject is my favorite. I love teaching. I'm a teacher, and I'm trying to give my all things that what I know. So, what have I given to you that in chemistry? What have I seen clearly? What is the main thing that we must know? Suppose if we don't know how to balance the equation, if we don't know, that means ki how many compounds, how many atoms, how to write chemical formulas, how to write chemical formulae, then we will get lots of difficulties. So when I started to think about chemistry, on the same time, on that time, I was in 23 years old. When I have completed my graduation, it was 21 years old, and I was teaching started, and I have written a book about chemistry. Then I have seen lots of problem that कि कहाँ पर बच्चे फंसते हैं. So one thing, it's a recap, and so that I am telling you about first of all balancing the equation. Balancing the equation is very must, and I have taught you earlier that how to balance. Then I have also told you that right there state, it is liquid, it is aqueous, or it is gas. Okay. Then after these things, I have gone to that means I have gone that octet rule and duet rule. Why inert gas? Outermost orbit, each and every atoms try to get stable, and for stability in their outermost orbit, for stability they need 8 electrons, right? Except He, that helium, it makes duet. So those gases they have completed their octet, they don't reaction, they don't react, not reaction, they don't react. That means they are called inert gases, noble gases, and हिंदी ये बोला जाता है निष्क्रिय gas. Then why atom, why reaction, why the reaction क्यों? I have told you earlier NaCl. Na in outermost orbit, it is one electron, right?
and Cl it is 17. So Cl Na give one electron to Cl. Na ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को Cl को दिया, ट्रांसफर किया, बन गया NaCl। देने वाला धनी, लेने वाला ऋणी, Na प्लस Cl माइनस। ठीक उसी तरह जब आगे बढ़े हम लोग, तो हम लोगों ने क्या पाया? हम लोगों ने पाया MgCl2, हम लोगों ने पाया AlCl3। इसका फंडा मैं पहले समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, सब कुछ लिख देते हैं, केमिकल इक्वेशन नहीं लिखा, मार्क्स कटेगा, राइट? इक्वेशन लिखने का। अब एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग इक्वेशन को रटते हैं, मत रटिए ना, मत रटिए। सबसे पहले अगर NaOH लिखना है और उधर जो कंपाउंड है NaCl है या कुछ भी है, उसको बस लिखिए आप पहले, और उसके बाद उसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करने की तरकीब मैंने आपको बता दी है। क्लियर? तो इस तरह आप बैलेंस कीजिए और तब देखिए आपके मार्क्स आते कैसे। मेटल और नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मैंने बताया है, मैंने समझाया है करना क्या है। अब है कि हम आते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट में। इसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, कैसे करके पीएच वैल्यू वगैरह होता है, कैसे करके मतलब सौर बीटा टेस्ट के बारे में होता है, उसकी एसिडिटी, पीएच का जो 7 वैल्यू है, 7 है, उसमें कैसे लेफ्ट हैंड साइड में एसिडिक होता है, इधर समझाया है मैंने करीब से। जरा गहराई से किताब को देखिएगा, कंप्लीटली टीचर पर डिपेंडेंट ना हो, थोड़ी डिपेंडेंसी खुद की रखें, है ना? क्योंकि यदि आप खुद से डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे ना, तो तकलीफ बढ़ेगी। कब तक आप भरोसे में रहेंगे? थोड़ा अपना भी माइंड चलाना होगा ना यार। कर लेंगे, एक बार भिड़ के देखिए तो सही। जिंदगी में भी कभी कभी यदि रास्ते नहीं होते हैं ना, तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। क्या? लड़ जाओ या हार जाओ। हम लड़ना पसंद करते हैं। वी ऑल आर अ ग्रेट फाइटर, राइट? सो कभी भी एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन को छोड़े ना। नंबर 3, हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स भी देखें। मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने क्या देखा? वी हैव सीन लॉट्स ऑफ मेटल्स, that suppose you can say Fe is a metal, gold is a metal, you know। तो मेटल्स के प्रॉपर्टीज मैंने हमने देखे हैं। अब प्रॉपर्टीज 2 होते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि कोई सॉलिड होता है, ठीक है, किसी में मतलब कि लिक्विड भी हो सकता है प्रॉपर्टी, राइट? वो कैसे करते हैं रिएक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग वी हैव सीन सर। सो यदि आप उसको इस तरह हैंडल करें, सबसे पहली बात कि केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं है। केमिस्ट्री इज नथिंग, केमिस्ट्री इज नथिंग, बस समझना होगा। कार्बन एंड कंपाउंड में आए, टेट्रा वैलेंसी आई, तो हमने क्या देखा? हमने यही देखा कि कार्बन में सी है ना, सी जो है अगर लिखते हैं सी, उसको ऐसे 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 17 एच लगा दीजिए। नोमेनक्लेचर आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं बताया हूँ। CH4, तो CH4 जो है ना, वो आपका होता है मीथेन। अगर C को 2 बार लिखिएगा, ब्रांच बनाता है, तो और सब में H जोड़िएगा तो C2H6 इथेन। उसी तरह 3C होगा तो C3H8 प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। फिर हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। बस कुछ करना नहीं है, सी आप 10 लिख दीजिए ना भाई, और सब तरफ से ब्रांच ले लीजिए एच का, देखिए बनते चला जाएगा। फिर इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, मैंने पहले भी देखा था, पहले भी बताया हूँ, ओल का, एल्डिहाइड ग्रुप CHO, और ओल, OL, ओल।
तो वो ओल है क्या? वो ओल जो है, ओएल, ओल जब जुड़ता है तो वो अल्कोहलिक ग्रुप है। हम जब उसको मीथेन से करते हैं, मीथेन से हम देखते हैं, तो सी में 4 एच में एच एच एच, एक एच हट जाएगा इस साइड का और लग जाएगा उसमें ओ एच, तो हो जाएगा मिथेनॉल। अगर C2H6 है तो एक एच हट जाएगा और लग जाएगा OL, हो जाएगा इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सनॉल, हेप्टनॉल। यही है और कुछ नहीं, बस ओल लगते चला जाएगा। CHO अल्डेहाइडिक फॉर्म है। ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन हाँ, एक बात बहुत गहराई से समझिएगा। उसको जब आप स्टडी कर रहे हो तो केमिकल इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर ये देखते हैं, आप याद कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन को ले रहा हूँ भाई, हाँ चलो यहाँ पर है, हम लिख रहे हैं, 1 मिनट के लिए मैं कहीं किसी भी चीज़ को खोल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2NaHCO3 हीट Na2CO3H2O प्लस CO2, इसे हम रट लिए। लेकिन यहाँ पर 2NaHCO3 मत लिखिए, सोडियम हाइड्रोजेने कार्बोनेट ये होता है, उसको लिखिए, इस सामने वाले 2 को मत लिखिए, तो हो जाएगा आपका रटना। अगर उस 2 को आप नहीं लिखें और बाद में उसको बैलेंस कर दिए, तब जाके आप समझ पाइएगा। केमिस्ट्री के राज को जानने के लिए मैं बहुत ही जबरदस्त रूप से उसको देखा, समझा। मैंने BSc तक केमिस्ट्री पढ़ी, किताब लिखी और उसके बाद केमिस्ट्री को समझने की कोशिश की। अभी जब आप आगे जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों का और सामना करना पड़ेगा, इंटर साइंस, है ना? तो कुछ नहीं है, बस समझ का फेर है। सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब वन बॉन्ड की साझेदारी होती है। मैंने कहा था कि बॉन्ड कितने तरह के, आयोनिक और कोवैलेंट। आयोनिक जनरली बनते हैं जब ट्रांसफर पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोवैलेंट शेयरिंग, साझेदारी। मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि यदि आप इसको स्किप किए हुए ना देखिएगा, यदि आप इसको देख रहे हैं साझेदारी, अब यहाँ पर कोवैलेंट आयोनिक बॉन्डेड भी है, तो कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, राइट? अब यहाँ पर इस बात को देखना बहुत जरूरी है, और बहुत से लोग ये भी नहीं जानते हैं, बस रटते हैं कि रिएक्शन क्यों, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हम रट दिए हैं, पर समझ नहीं पाते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब रही बात कि यहाँ पर कार्बन कंपाउंड जो है वो कुछ नहीं है, बस लगाते जाना है, ऑल वगैरह, मिथेनॉल, इथेनॉल। अब बॉन्डिंग जब होती है तो जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, जहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, जहाँ पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड। आप लोग अभी बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने माइंड को शांत रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और हाँ, अपने पढ़ाई को ढंग से कीजिए, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास पढ़िए, और पढ़ते ही मत रहिए, कभी कभी उठिए, थोड़ा हंसिए, घूमिए फिरिए, है ना? समय दीजिए, क्वेश्चन के सेट को हल कीजिए, आप देखिएगा आपका रिजल्ट अच्छा होगा। बस खुश रहिए। अभी मेरा ये केमिस्ट्री का अंतिम क्लास था, जिसमें कि मैं केमिस्ट्री ओवर कर चुका हूँ। मैथ चल रहा है, बायो चलेगा, फिजिक्स चलेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैं सबको ओवर कर दूंगा। और फिर आप जो है उसको देखिएगा, और एक बार मेरे इस वीडियो को देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के टॉपिक मिलेंगे। 10th 12th, आई एम टीचर। मैं क्या करता हूँ भाई कि मैं अब सिखाता हूँ, पढ़ाता नहीं, सिखाता हूँ कि करना क्या है, व्हाट इज द मतलब पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ टू गो।
अचीव योर गोल। ठीक है, अभी आप 10 जाइएगा, +2 जाइएगा, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, आपको जॉब्स पाने हैं या फिर अपने ख्वाब पाने हैं, तो उन ख्वाब को पूरा करने में मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। थोड़ा सा जो मेरा ज्ञान है, अनुभव है, मैं सीख रहा हूँ, लेकिन अनुभव की चक्की में पिसा हुआ इंसान हूँ। 25,000 प्लस बच्चों को पढ़ाया हूँ जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में अपना काम कर रहे हैं। आई एम ए टीचर, और टीचर को क्या चाहिए? एक सम्मान। जब हमारे स्टूडेंट अच्छे होते हैं ना, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।